اور مجھے یقین کریں نیازی کہتے اس پر شرم آتی ہے کیونکہ میں خود مدیہ نیازی ہوں. مجھے شرم آتی ہے. شیم فور یو نیازی عمران خان, شیم فور یو. میاں نواز شریف کے لیے قربانی دینی ہے, مریم بی بی کے لیے قربانی دینی ہے, شہباز صاحب کے لیے قربانی دو. ناجائز اندر ہے, یہ ظلم ہے. یہ ظلم کے ضابطے ہم نے نہیں ماننے ہیں. عزیز اپنے قائدین کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے. کون ہے جو ہماری پرواز میں کمی لائے؟ ہم پروں سے نہیں حوصلہ سے اڑا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. کہ وزیر اعظم ہو کے آپ کو لوگ ناپسند کرتے ہیں, اور ایک وہ ساہ سمندر باہر بیٹھا ہے, ایک اس کی بیٹی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, ان کے لیے لوگ جانے دینے کو تیار ہیں. ماشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح موجود, ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی جان نثار سپاہی اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. سلیوٹ ہے ان سب کو, سلیوٹ ہے. عدیل خان, ببر شیر پاکستان مسلم لیگ نون, آصم ملوی صاحب, مون سندھو بھائی, ان کے ساتھ موجودہ رانا رضوان, رانا عمر اقبال, ملنگ بادشاہ, ذیشان مشتاق, وکی چوہان. عامر بھائی ادھر دیکھیے گا, عامر گیل, ببر شیر, ہر محاذ پہ لڑنے والے ببر شیر. اسیران جیل کے یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں سارے سامنے, مختلف حلقوں کی صورت میں سارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پہ, لیکن سب کی آواز ایک ہی ہے, ووٹ کو عزت دو. الحمدللہ ہم اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ تمام آنے والے بھائیوں کا. میں تھوڑی دیر تک سب سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دلوں کا راجا میں راول راجا, جلنے والوں کا منہ کالا. لو یو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے انشاءاللہ العزیز. اپنے قائدین کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک کھڑے رہیں گے. کون ہے جو ہماری پرواز میں کمی لائے؟ ہم پروں سے نہیں حوصلہ سے اڑا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. دیکھیں دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, ببر شیر یہاں پر پہنچ چکے ہیں. دیکھیں گے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ جو مریم نواز کا راستہ روکتی ہے. انشاءاللہ یہ کنٹینر شنٹینر ماشاءاللہ طاہر بھائی بہت شکم پین چلا رہے ہیں. اللہ کو کامیاب کرے, سرخرو کرے. ٹھیک ہے, اور سب ٹھیک ٹھاک ہے نا. اللہ کا شکر ہے. زندہ باد جی. قائد کی بیٹی محترمہ مریم نواز زندہ باد. زندہ باد. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے. دیکھو جی ببر شیر اس وقت پونگی بھی جا رہے ہیں. ہم لوگ طیب اردگان بن چکے ہوئے ہیں, حق کے لیے لڑنے کے لیے ہم بن چکے ہوئے ہیں. یہ سمندر سے بالا نہیں جانا. یہ جذبہ چاہیے, یہی ہے, یہی ہے یہاں پر. ہمیں کوئی ڈر نہیں پرسوں کا, کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں. ہم اپنی 7 سال کی بچی کو لائے ہیں. بیٹا اب قربانی دینی ہے اس ملک کے لیے. میاں نواز شریف کے لیے قربانی دینی ہے, مریم بی بی کے لیے قربانی دینی ہے, شہباز صاحب کے لیے قربانی دو. ناجائز اندر ہے, یہ ظلم ہے. یہ ظلم کے ضابطے ہم نے نہیں ماننے. اب بہت ٹائم دے دیا ہے, زمین پہ آ گئے ہیں. بس اب ہماری بھی کوئی عزت پورے دنیا میں ہونی چاہیے. اس نے ہمیں غلط کر دی ہے. ہم سب نواز ہیں کہ کتنی مریم پکڑ لیں گے. یہ ہر گھر سے مریم نکلے گی انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. اور مجھے یقین کریں نیازی کہتے اس پر شرم آتی ہے کیونکہ میں خود مدیہ نیازی ہوں. مجھے شرم آتی ہے. شیم فور یو نیازی عمران خان, شیم فور یو نیازی عمران خان. ہم چرکے میں بیٹھنے والے لوگ, ہم ٹیبل ٹاک کرنے والے لوگ, ہم اس طرح. آپ نیازی نہیں ہو, ہم نہیں مانتے آپ کو نیازی. ویری گڈ, زبردست. ایک نیازی کہتی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے آپ کو نیازی کہتے ہیں. ایک نیازی کہتی ہے مسلم لیگ نون کی ایک سینئر ورکر کہتی ہے آپ کو کہ مجھے شرم آتی ہے آپ کو نیازی کہتے ہوئے. زندہ باد, زندہ باد.
इसने न्याजियों का भी सर शर्म से झुका दिया है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हक राइट भी है कायदीन हमारे, मगर इमरान नियाजी तुमने हमें जलील कर दिया नियाजियों को। शर्म खा लो, अभी इस्तीफा दो, घर जाओ, बस करो ड्रामा, अब बस करो ड्रामा, अब घर जाओ, घर जाओ और माफी मांगो, माफी भी मांगो, पूरी आवाम से माफी मांगो। झूठे केस खत्म, तुमने क्या, आपने क्या खत्म करनी है? दुनिया को पता लग गया सब झूठ था, सब ड्रामा था, सब साजिशें थी जो आपने की, सब साजिशें, और अल्लाह ने आपको बेनकाब किया। वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के लोग आपको गलत अल्फाज कहते हैं, रब्बुल इज्जत इज्जत देता है। कैसी इज्जत है आपकी कि वजीर आजम हो के आपको लोग नापसंद करते हैं, और एक वो 7 समुंदर बाहर बैठा है, एक उसकी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है, उनके लिए लोग जाने देने को तैयार हैं। कभी सोचो रात की तन्हाई में बैठ के, कभी सोचो कि क्या वजह। रूल भी था, जमहूरियत भी थी, आवाम को रोटी भी मिलती थी, बच्चों को स्कूलों में किताबें भी गवर्नमेंट के मिलती थी, हर चीज प्रोवाइड थी, ठीक है, मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ बरादरान के दौर में। मगर अब क्या है, अब ना रूल है, ना किसी की बेटी की इज्जत महफूज है। गली कूचों में जो कुछ हो रहा है, कहाँ रियासत मदीना इमरान नियाजी, कहाँ पे है? आवाम पूछती है कहाँ पे। थानों में चले जाए, वहां पे कोई सुनता नहीं है, ना किसी के कोई काम होते हैं, ना हॉस्पिटलों में दवाइयां मिलती हैं, कहाँ पे हैं रियासत मदीना? हम भी बिल जलाएं, हम भी जलाएं बिल, यूनिट कितने से कितना कर दिया है। झूठ बोल रहा है वजीर आजम, झूठ बोल रहा है। कटौलजी में चले जाए, प्राइवेट चेक कर रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंगों में प्राइवेट चेक किया जा रहा है, और जो पैसे नहीं देते उनको कहते हैं वहां पे बैठ जाओ साइड पे होके, समझे? जिन्होंने पैसे खर्चे पहले वो अंदर जाएंगे। सरकारी बिल्डिंगें हों और प्राइवेट पैसे डॉक्टर देखें, वजह बताएं हमें, कहाँ पे गए रूल? हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए, ये इस्तीफा दे और अपने घर को जाए, नहीं तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी मरियम बीबी कहेंगी, जिस तरह मौलाना साहब कहेंगे, हमारे कायदीन नवाज शरीफ साहब कहेंगे, शहबाज साहब कहेंगे, हमजा साहब कहेंगे, हम उस तरह इस्लामाबाद को डी चौक चल पड़ेंगे। अब ये सिलसिला चल पड़ा आज। बहुत शुक्रिया एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल छोटा सा जी। मरियम के जज्बात क्या है 16 अक्टूबर के हवाले से? बाजी जी जी, बाजी मरियम के जज्बात ये है कि वो कहती हैं कि हक के लिए अवाम को रोटी नहीं मिल रही है, अवाम के लिए निकले, लोग बीमार है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, और हमने अब कोई भी मुक्के दिखाने वाले के साथ नहीं चलना। जमहूरियत होनी चाहिए, जिनके जहाँ पे काम है वो अपने काम वहीं पे करें। अदारों में बातचीत की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। उनका जो नजरिया है, जो बयानिया है, बिल्कुल ठीक है, ये खत्म सिलसिला होना चाहिए अब, बिल्कुल ठीक है जी। इसलिए अवाम बाहर आ गई है, पूरी अवाम पूरे अपने इंजाम तक पहुंच रहा है अपनी मंजिल को पाने के बाद। बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा 2009 में मियां नवाज शरीफ साहब ने वकला के लिए एक तारीख चलाई थी, याद होगा? ये उससे बड़ी तारीख है जो मरियम बीबी चलाएंगी अब अपने अवाम के लिए। याद रखिएगा हमारी बात, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये उससे बड़ी तारीख है। और समुद्रों के समुद्र आप देखे आए हुए हैं अभी से, बिल्कुल बाहर गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, हमें डर है, खौफ है इस हुकूमत को। जी ताल्लुक ना रहीमिया खान से है, तो मैं आपको यहाँ के हालात बता रहा हूँ कि यहाँ के लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े जज्बाती है इस जलसे के लिए, और माशाल्लाह पूरे मुल्क की नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस जलसे के ऊपर लगी हुई है, और आपके ऊपर लगी हुई है, आप कारकुनों के ऊपर लगी हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्करों के ऊपर लगी हुई है। आप जैसी आप बिलीव करें, यहाँ पे कारकुन 7 साल की बच्ची भी आई हुई है, मानेंगे आप? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको उसको दिखाती हूँ, 7 साल की बच्ची आई हुई है, और जवान बच्ची है, मेरी अपनी सारी फैमिली में आई हुई है, एक साइड पे बैठी हुई है, सब हमारे भाई। यहाँ पर जो वर्कर उनके जज्बात आप कैसे देख रही हैं? उनके जज्बात इस तरह है कि वो कहते हैं कि अभी हमें वो बड़े चार्ज नजर आ रहे हैं, बड़े वो जोश और जज्बा नजर आ रहा है। आप कैसे इनकी तर्जमानी करेगी, कैसे बताएंगी कि इनके जज्बात क्या है इस वक्त?
आप यकीन करें वर्कर के जज्बात संभाले नहीं जा रहे हैं। ये आप देखें वर्कर के जज्बात संभाले नहीं जा रहे हैं और वर्कर यहाँ पे दिन रात रहने के लिए दिन रात रह रहा है वर्कर कि हमारी कायद की बेटी निकले, वो हमारे लिए निकल रही है। वर्कर जिंदाबाद है वर्कर की, क्योंकि मियाँ साहब ने हमेशा, कायदीन हमारे ने हमेशा वर्कर को इज्जत दी है और वोट को हम कहते हैं अब इज्जत दो। वर्कर का जोशो खरोश माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज्यादा कि अभी से समुंदरों के समुंदर आ रहे हैं। आज हमारे एक बड़े ही अच्छे भाई जो कि कश्मीर और पेशावर से आई हैं, आप ये देखें, और अभी कुछ रास्ते में है जिन्होंने कल पहुंच जाना है। कोई गलगित से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, देखें सूबों से कि पूरा जाती उम्रा के बाहर आप यकीन करें कंटेनर खड़े कर दिए। मेरे अपने घर में रेड बजी है, कोई मसला नहीं है। हम वर्कर लोग हैं, हम महंगाई के खिलाफ निकल आए अपने कायदीन के लिए, हमें कोई परवाह नहीं। ये जोश और ये खून, ये जोश खत्म नहीं होगा। अब ये कोई फैसला करवाएगा जोश। अब हुकूमत का तख्ता उल्टना इंशाल्लाह, और उसको खौफ पड़ गया है और अपने ही गंदे हथकंडों पे आ गए हैं। हमें कंटेनर तो दिलवा दें, आपकी मेहरबानी है। सोशल मीडिया वाले आवाज उठाएं। इसने कहा था हमें कंटेनर देंगे, हमें बिरयानी की देके भेजेंगे, हमें बिरयानी की जरूरत नहीं है। हमें मदिया नियाजी एक बात पूछती है इमरान नियाजी से, आया कि जब वजीर आजम साहब का नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरम के दौर में आपने धरने दिए, आया कि कितने पर्चे करवाए थे आप पे? एक भी नहीं। असल में इमरान नियाजी साहब, आप धरने की पैदाइश है, आप धरने की पैदाइश है, आप जमहूरियत की पैदाइश नहीं है। अगर आप जमहूरियत की पैदाइश होते तो आप कंटेनर ना रखते, आप वर्कर को ना उठवाते, आप कहते भाई दिल खुला करते अपना, भाई आई जी करें जलसा। वो वक्त याद करें जब आपने कहा था कि मेरे खिलाफ 5000 बंदा निकल आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। याद है आपको? मुझ में गैरत हुई, साथ ये कहा था कि अगर मुझ में गैरत हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज डी चौक में 2 लाख तकरीबन बंदा बैठा हुआ है, लेडीज वर्कर और हेल्थ वर्कर जो बैठी हुई है। बताएं, हमें जवाब देना इमरान नियाजी, जवाब दे। रियासत मदीना बनाई हुई थी जो, कहाँ पर है? जवाब दें। कोई जवाब नहीं है। क्यों? आपके यू टर्न है, हर बात में यू टर्न है। अब यू टर्न खत्म। अब इंशाल्लाह ताला अवाम की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपको कारकुनान के जज्बात दिखाता हूँ इस वक्त। ये देखें, ये जज्बात। ये थे हमारे बड़े प्यारे भाई सुभान बिल्डर, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये जज्बात हमारे कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिपाही जो हैं, उनके जज्बात ये आपको दिखाई, ये देखें।